أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما آمين ثم آمين. تو اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اللهم فلك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم فلك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم فلك الحمد كله ولك الشكر كله. So today I'm going to take a new concept or a new topic. The name of the topic is فعل. English में उसको verb कहते हैं, अरबी में उसको فعل कहते हैं. So the parts of speech in Arabic are three: ismun, fi'lun and harfun. Ismun, fi'lun and harfun. इसम को हमने स्टार्ट किया है, फ़ेल को आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्योंकि ये दोनों साथ साथ चलते रहेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा. हरफुन को भी हमने पढ़ा है तो इन तीनों को साथ लेकर थोड़ा थोड़ा करके ही सही. तो now you have to celebrate for this reason कि खरजा आ गया है हमारे आगे. The great fail has come before us. अल्हम्दुलिल्लाह. हमको तो खुशियां मनानी चाहिए भाई, हमको तो सेलिब्रेट करनी चाहिए कि हमने फेल को समझने के लिए कदम उठाया है या बढ़ा दिया है. So what is फेल? आप सभी जानते हैं फेल वो होता है फ़ाइल लम फ़अला. फेल फेल नहीं है, फेल. ओके, फ़िइलुन फ़अलुन फ़अला फ़अला. ओके, that is फ़िइलुन या फ़अलुन या फ़अलुन. ये तीनों तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है मगर तीनों के थोड़े से डिफरेंस होते हैं मीनिंग. Now kharaja is in front of you. What is this kharaja, my dear students? What is this kharaja? kharaja का meaning he left. वो चला गया यानी कि वो गया, उसने छोड़ा, वो गया. He exited, he left. Okay, kharaja का meaning. So this kharaja is a verb. इसको हम इसम नहीं कहते, इसको हम वर्ब कहते हैं. दिस इज ए फेल. ओके, खरजा वर्ब, फेलुन, फाइन लम, उसके 3 लेटर्स होते हैं तो ये 3 लेटर्ड फेल कहलाता है. सो खरजा, ही लेफ्ट इज ए वर्ब और इट इज ए फेल. कैसे है खरजा का मीनिंग? जैसे कि हम फ्रॉम होम या हाउस या होम, अब हम कह सकते हैं कि ही लेफ्ट, वो चला जा रहा है. घर से जो बाहर निकलकर बंदा जाता है उसको क्या कहते हैं? खराजा. खराजा, ही लेफ्ट. ओके. जो फेल होता है, a verb will always require a doer. ये जो फेल का लफ्ज तुम्हारे दिमागों में आता है, ए वर्ब का लफ्ज दिमागों में आता है. एंड दिस इज द फर्स्ट क्लास एंड दिस इज ए न्यू टॉपिक. जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं या लेने वाले ही, उन सबों के लिए ये नया टॉपिक है. इट्स वेरी गुड टाइम टू अंडरस्टैंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट. अ वर्ब विल ऑलवेज रिक्वायर ए डूअर. यू नो कि ए वर्ब ऑलवेज रिक्वायर ए डूअर. डूअर को ही कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ वर्ब. सब्जेक्ट ऑफ वर्ब. आप सभी पढ़े लिखे हजरात हैं, इंग्लिश में आप जानते हैं, अब वर्ब को जानते हैं आप, डूअर को जानते हैं आप. सो a verb is always in need of a doer. Without doer there is no verb at all. अरबी में कहते हैं फिइलुन. फिइल, फिइलुन वर्ब. ओके, फिइल आता है तो उसके साथ क्या आपके दिमागों में आना चाहिए?
فائل آنا چاہیے. فائل مطلب ڈوئر آف دا ایکٹ. ڈوئر جو بھی ایکٹ ہے, کیونکہ ورب از ریلیٹڈ ٹو دا ایکشن اینڈ ورب از ریلیٹڈ ٹو دا ٹائم. ہی لیفٹ, دیکھیں وہ جا رہا ہے, وہ آ رہا ہے, وہ کھا رہا ہے, وہ پی رہا ہے, وہ کھا کے ہو گیا, وہ جانے والا ہے, وہ آنے والا ہے, وہ جا کے ہو گیا, وہ کل جائے گا, وہ پرسوں جائے گا, وہ جائے گا ضرور. تو اس طریقے سے ٹائم ریلیٹڈ ورڈز ہوتے ہیں. اسمن کو پڑھا, اسمن از ناٹ ریلیٹڈ ٹو ٹائم بٹ ورب از ریلیٹڈ ٹو ٹائم. اوکے, تو ورب کے ساتھ فاعل کا ہونا بے حد ضروری ہے. فاعل از دا ڈوئر, سبجیکٹ آف ورب. میم اسکرین نہیں دکھائی دے رہی. میں نے تو شیئر کیا ہے اسکرین, آ رہی ہے, کلیئر آ رہی ہے, شیئر کیا, مجھ کو یہاں دکھائی دے رہی ہے. الحمدللہ. تو نا واٹ از دس ہی لیفٹ, کہاں پہ ہے ہی یہاں اس خرجہ میں, کہاں سے آیا ہی؟ ہوا, ہی کا میننگ عربی میں ہوا. خرجہ, ہی لیفٹ, ہی از ہوا. this ہوا, this he is the file. left is the fi'il, ہوا is the file. Okay, so a verb needs a subject. So a verb fi'lun is always in need of fa'il. A verb needs a subject. Okay, اتنا تو پوائنٹ سمجھ میں آئے آپ سبوں کے, اب کہہ سکتے ہیں. تو what is verb now? میں نے ڈیفینیشنز تو دیے تھے, اسم فعل حرف کے ڈیفینیشنز پہلے ہی آپ کو بتائے تھے. تو ورب کیا ہوتا ہے, فعل کیا ہوتا ہے؟ Verb will always require a doer. ہوتا ہے. verb is related to time. ایکشن ہوتا ہے اس میں, ایکشن ورڈ پلس ڈوئر ہوتا ہے. ایکشن ورڈ لیفٹ, لیفٹنگ از این ایکشن, تو اس کے ساتھ اس کا ڈوئر بھی ہوتا ہے, فاعلن بھی ہوتا ہے. تو verb is related to time, related to time, and it is in need of a subject, a fa'il. Subject is fa'ilun. It is in need of fa'ilun. خرجہ, تو سو ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ اب خرجہ ہے, لیفٹ کا میننگ اس میں ہے, he left. So where is the doer? Where is the doer in خرجہ؟ خرجہ لے لے, فعلا لے لے, ذهبا لے لے, any verb. Where is the doer? ہوا is the doer. And it is کہاں پہ ہے اس کے اندر, چھپا ہوا ہے. ہوا, the doer is inside the verb. It is hidden inside the verb. کوئی بھی verb لے لے, without doer there is no verb at all. Okay, the doer of the action is hidden inside the verb. So where is the doer? Where is the doer? Hidden inside the verb. Hidden inside the verb. Okay, now the pronoun, what is this ہوا? اب سبھی پڑھے ہوئے ہیں, ہوا is the pronoun. pronoun ہے یہ ضمیر ہے یہ. تو ہوا is hidden inside the verb. ہوا is the pronoun. he left, وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے, خرجہ میں چھپا ہوا ہے. So now where is the file? Where is the file now? چھپا ہوا ہے. File is مستتر, اس کے اندر چھپا ہوا ہے. ہوا فائلن ہڈن انسائڈ دا ورب, کوئی بھی ورب لے لی اس کے اندر وہ چھپا ہوا ہوتا ہے. تو سو فائل چھپا ہوا ہے اس میں ہوا کی شکل میں, ہوا لکھا نہیں جا رہا, ہوا خرجہ نہیں ہے, اونلی خرجہ. تو ہوا کی میننگ اس کے اندر ہڈن ہے, ہی لیفٹ, ہی ایگزٹڈ. اوکے,
تو مستتر ہوتا ہے. مستتر کا میننگ عربی میں مستتر جو ہوتا ہے اس کا میننگ ہڈن ہوتا ہے, چھپا ہوا. فائل چھپا ہوا ہوتا ہے فعل کے اندر. تو سو ویئر از دا ڈوئر؟ Where is mustatir? Where is mustatir? Inside the verb. Okay. So in what form is the hidden subject? اب اس فارم کی طرف آئیں گے تو یہ کون سی شکل میں چھپا ہوا ہوتا ہے؟ جو چھپا ہوا پروناؤن ہوتا ہے ایز اے فائل, ایز دا فائل, تو اس کا واٹ از دا فارم؟ واٹ از دا فارم آف دیٹ ہڈن سبجیکٹ؟ سبجیکٹ اور دا فاعلون, واٹ از دا فارم؟ خرج. تو ان what form is the fa'ilun? Another question. فاعلun مستترun کون سے فارم میں ہے یہ؟ مستترun. کون سے فارم میں ہے؟ he left. So what is the form in the hidden subject? فاعلن مستترun. اور یہ کون سا فارم ہے مستتر فاعلن؟ It is the pronoun ضمیر مستتر. In what form is the فاعلن مستتر؟ مستتر مطلب hidden. hidden فاعلن ہوا اس کی ضمیر جو hidden ہے تو that is the ضمیر مستتر. So in what form is the فاعل؟ File is in the hidden form. I want the correct answer. So in what form is the file? As mustatir. Fa'ilun mustatir. مجھے فائل نہیں, میں فائل پوچھ رہی ہوں. تو what is the file here? Huwa What is the file? dhamirun ہوا ضمیر مستتر. ہوا کہنا چاہیے آپ کو. ہوا ضمیر مستتر. So what? In what form is the file? وضمير هو مستتر. ضمير مستتر. So this is the subject. This is the file. Subject is the hidden pronoun. Damirun mustatirun, hidden pronoun. Subject is, in what form is the fa'ilun or the subject? تو کیا کہنا ہے آپ کا آنسر؟ Subject اور فاعلون is a hidden pronoun. اردو میں فاعلون ضمیرun مستترun ہوتا ہے. ضمیرun مستترun. ہوا ضمیرun مستترun, hidden pronoun, and it is hidden in this fi'l. Hidden in this fi'l. Now, coming toward the structure of Arabic verbs. To know a verb, we have to know the structure of the Arabic verbs. Okay, we have to know the structure of this verb. خرجا تو آئی لے رہے ہیں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں آج. خرجا. خ heavy letter, را heavy letter, ja is light letter. خ first letter ہے number 1, را is the second letter, jim is the third letter. Jim is the third letter. So, تو 3 rooted letter اس کو کہا جاتا ہے root words of the fi'l. See, this is the structure. Okay, the structure of Arabic words is made up of 3 root letters. How many root letters آتے ہیں؟ 3 root letters سے بنا ہوا ہوتا ہے. اور you know 99.5% or 99% of the Arabic verbs can be traced back to these 3 root letters. To the root of 3 letters. کتنے پرسنٹ ہے قرآن میں؟ in the whole of the Arabic language itself 99%. اور کچھ چند مفسران اکرام کہتے ہیں, چند great grammarians کہتے ہیں 95%. 95 لے لیں یا 99 لے لیں. اوکے, تو سارے عربک وربس 3 روٹڈ لیٹرز, ان کا مادہ جس کو مادہ کہتے ہیں, اس کے مادہ کے حروف 3 ہوتے ہیں. 3 حرفی مادہ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں فعل. Okay, so only 1% or 5%
0.5%, or 5% of Arabic verbs can be traced back to the root of 4 letters or 5 letters or root of 6 letters. Only 0.5% होते हैं खुमासी. ये रुबाई 4 letter words को कहते हैं रुबाई, खुमासी कहते हैं 5 letter words को, एंड सुदासी कहते हैं 6 letter words को. कितने होते हैं? 0.5%. तो इसलिए हमको कौन सा पढ़ना चाहिए? हमको 0.5% वाले 4 letter 5 letter roots पढ़ने चाहिए, या we have to study this 3 root letter word. आप बताएं कि हमको कौन सा पढ़ना है, कौन सा सीखना बेहद जरूरी है? 3 कौन सा roots सीख- letter. तो now the 4 root letters की भी मैंने एग्जांपल डाले हैं. सी हियर तर्जमा, तर्जमा, ता रा जीम मीम. Ta is 1 letter, Ra is another 2nd letter, Jim is, Ja is 3rd letter, Mim is 4th letter. वसा कुरान में ये कहीं 2 या 3 या 4 मरतबा इस्तेमाल हुए हैं. That's it. ज़लज़ला, ज़लज़ला, ज़ाइलाम, ज़ाइलाम. तर्जुमा हीटा, हम उर्दू में भी कहते हैं तर्जुमा, तर्जुमा करो भाई, ट्रांसलेट करो भाई. वसवसा हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं कि कहते हैं कि इसके दिल में क्या वसवसे आ रहे हैं, कौन से वसवसों में ये फंसी हुई है, हम कहते हैं अपनी बातों में वसवसा. ही विस्पर्ड. अब ये सबों में ही तो नहीं है, बट ही इज हिडन हियर. ही इज द हिडन डोमीर. ज़लज़ला, ही शुक वायलेंटली. ज़लज़ला उर्दू में भी कहते हैं, वसवसा उर्दू में भी कहते हैं, तर्जुमा उर्दू में भी आता है. यही अल्फाज हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं. तर्जुमा को हम दूसरा कोई लफ्ज नहीं लेते. देखिए आप उर्दू जानने वाले हजरत कितने आसानी से इस कुरानिक वर्ब्स को समझ सकते हैं, कुरानिक वर्ड्स को समझ सकते हैं. जलजला नहीं कहते आप भाई. पाकिस्तान में परसों सब क्या हुआ, जलजला आया था, सीरिया में आया था, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में भी आया था. जलजले आते हैं, अर्थक्वेक्स. तो जलजला का मीनिंग ही शुक वायलेंटली, जो वायलेंटली हलाया जाता है तो उसको कहते हैं जलजला. तो तो ये these 3 letters फॉर एग्जांपल जो डाला है, these are the 4 rooted letter. खरजा जो है 3 root letter वाले verbs 99.5% आते हैं कुरानिक लैंग्वेज में. इन अरबिक लैंग्वेज में इटसेल्फ उतने ही आते हैं. सो इसको हम पढ़ने जा रहे हैं, उसको हम नहीं पढ़ रहे हैं. ये फ्यूचर स्टडीज में, एडवांस्ड स्टडीज में अगर चाहे तो आप पढ़ सकते हैं. जब भी जरूरत आएगी मैं ये भी बताती रहूंगी. तो खरजा 3 बेस रूट लेटर्स जो होते हैं ये 99.5% होते हैं सारे कुरान. तो जस्ट लाइक खरजा, रज़ाक़, रज़ाक़, he provided, कहाँ से आया ही, कि इट इज हिडन डोमीर उसके अंदर छुपी हुई होती है. रज़ाक़, र 1 letter, ज़ाई 2nd letter, क़ाफ is the 3rd letter. 3 root letter word 99.5% आते हैं सारे कुरान में. Okay? तो now the structure of Arabic verb की तरफ आते हैं. So अब हम खरजा, ज़हबा, दखला वगैरह वगैरह लेने के बजाय the great grammarians ने एक स्टैंडर्ड मेजर रख दिया है, एक स्टैंडर्ड मेजर रख दिया है. उसी के पैटर्न पर हम सारे वर्ब्स को लेकर चलते हैं. तो उस स्टैंडर्ड पैटर्न का स्ट्रक्चर क्या है इसको देखेंगे. फ़अला, फ़ा फतहा फ़ा, ऐन फतहा फ़ा, लाम फतला, फ़अला, फ़अला, फ़अला नहीं पढ़ना चाहिए. अब आप अऊज़ु बिल्लाहि भी पढ़ें तो अऊज़ु, अऊज़ु पढ़ रही. वेयर इज ऐन? अऊज़ु, अऊज़ु, ज़ु, अऊज़ु बिल्लाहि. कैसे पढ़ना चाहिए? ऐन को मिस नहीं करना चाहिए, छोड़ देना नहीं चाहिए. फ़अला. ओके. अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ पे फा रेड इंक में है, रेड कलर में है, ऐन ब्लू में है, लाम ग्रीन कलर में है. तो 3 रूट लेटर्स. तो इसको क्या कहते हैं?
فعل, this comes from the word fi'ilun. Fi'ilun سے derived letter فعل, which means the verb. فعل is اس کا meaning انگلش میں verb ہوتا ہے. verb کہتے ہی آپ کے دماغوں میں بات آتی ہے کہ اس کے اندر ایکشن ہوتا ہے اور ٹائم ریلیٹڈ ہوتا ہے. ایکشن with ٹائم, ٹائم کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. noun, there is no time in noun, that's why it is super noun. So every past tense verb is on this pattern. فعلا کے pattern پر ہوتا ہے. کوئی بھی آپ verb لے لیں, past tense verb اسی pattern پر آنا چاہیے. جیسے کہ خرج, ذهب, سمع, اوکے, وغیرہ وغیرہ. تو الحمدللہ the important information for you all is, تو یہ دیکھیے فعلا, فا کلمہ ہوتا ہے, فا کلمہ, عین, عین فتح, عین کلمہ, لام, لام کلمہ. 3 کلموں سے بن کر یہ ایک ورب بنتا ہے. فعلا. اب انگلش میں فا ریڈیکل کہتے ہیں, عین ریڈیکل اینڈ لام ریڈیکل. خرج, ذهب, اوکے, داخل, کوئی بھی ورب لے لیا تو اس کے اندر فا کلمہ, عین کلمہ, لام کلمہ ہوتا ہے. فا مطلب the first radical, the second radical and the third radical. اوکے, تو فا کلمہ first radical, عین کلمہ the second radical, لام کلمہ the third radical. انگلش میں ایسے کہتے ہیں. اوکے, نو اب آپ فار ایگزامپل میں لے رہی ہوں قرآن کی آیت. شاید آپ سب جانتے ہوں گے اس آیت کو, میں امید کرتی ہوں کہ آپ جانتے ہوں گے. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد, نعبد غلط, نعبد غلط, نعبد غلط, نعبد. تو اب یہاں کون سے وربس ہیں؟ یہاں پہ ہم نعبدو کو لیں گے اور نستعین کو لیں گے. اوکے, نعبدو, عبدہ جس کا روٹ لیٹر ہے, نون ایکسٹرا آیا ہے, عین بدل. Every verb has 3 radicals. We are going to study only 3 radical verbs. تو قرآن میں 99% آئے ہیں ایسے الفاظ جو صرف 3 حرفی ہوتے ہیں. 3 حرفی عربی میں صح حرفی, صح حرفی مطلب 3 حرفی ہوتے ہیں, 3 حرف ہوتے ہیں, عین با دال. نعبدو, عبدہ جس کا روٹ لیٹر ہے, عبدہ سے نعبدو بناؤ. ایا کو میں چھوڑ رہی ہوں. پھر اگین نستعین, نستعین, نستا یہ ایکسٹرا لیٹر سے. اب یہاں نعبدو میں نون ایکسٹرا ہے, عین بادال, یہ 3 روٹ لیٹر کے ساتھ ایکسٹرا لیٹر آیا ہے. اب یہاں نستعین میں نستا, نون سینتا is the extra letter, عین یا نون, عینا یا عوانا, عینا اور عوانا روٹ لیٹر اس کا ہوتا ہے. تو ہر روٹ لیٹر کے ساتھ اس کا تو میننگ ہے ہی ہے. اس کے ساتھ جب ایکسٹرا لیٹرز ایڈ ہوتے ہیں تو the meaning of the root letter, it will gain extra meaning. Extra letters means extra meaning. اب یہاں پہ دیکھیں گے عبدہ, he worshipped. نعبدو, we worship, we کا meaning آ گیا. نستعین, عوانا یا عینا کا روٹ لیٹر ہے to seek, یہ to help. نستعین, we seek help. اور بھی اس کے کئی سارے معنی آتے ہیں, تو ایک ایک میننگ ایٹ اے ٹائم لے کر چلیں. تو آپ کو قرآن میں اور سارے عربک لینگویج کی کتابوں میں آپ کو ایسے ہی الفاظ ملیں گے. ایسے الفاظ سے عربک لٹریچر بھرا پڑا ہے یا بنا ہوا ہے. تو آپ کو اپنے دماغ کی بتی سلگانی ہے, سوچنا ہے. ہر لیٹر کا ایک روٹ لیٹر ہوتا ہے, اوکے, جس سے وہ ڈیرائیو ہو کر یا ایکسٹرا لیٹرز لیتے ہیں تو ایکسٹرا میننگ آتا ہے.
her ये नस्तईन is derived from the root letter a ya nun, ain ya nun, ya ain waw nun, root letter. na'budu is derived from the root letter ain ba dal, abada. तो इस तरीके से आप सीख कर चलेंगे, ये हरगिज भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। तुम जो भी लैंग्वेज पढ़ोगे, हर लैंग्वेज में भी उसके भी रूट लेटर्स होते ही, जैसे कि ईट, एट, ईटन, ईएटी तो सबों में आता है, ईटिंग, एट, तो सब इसमें जो रूट लेटर्स होते हैं उसके साथ एक्स्ट्रा हर्फ ऐड होता है, तो उसका एक्स्ट्रा मीनिंग होता है। इट इज जस्ट लाइक दैट। क्यों हमने मुश्किल बना लिया है जबकि इतनी आसानी से समझाया जा रहा है, क्यों इतना हमने हार्ड बना लिया है? वल्लाहु अलम, वल्लाहु अलम। हमने दिमागों में बसा लिया है, जनरेशन टुगेदर हमने अपने दिमागों में बसा दिया गया है द ग्रेट उलमा इकराम ने, द सो कॉल्ड उलमा इकराम ने तो बना डाल दिया है हमारे दिमागों में, और हम ऐसे ही बना समझते चले आ रहे हैं। और आजकल तो इतना मुश्किल हो गया है, हमारे पास तो सारी दुनिया के काम काज के लिए वक्त होता है, मगर इसको देखने, पढ़ने, सोचने, समझने के लिए वक्त नहीं होता है, इसलिए हमको ये बहुत मुश्किल लगता है। जैसे कि सब लैंग्वेजेस में भी उसके रूट लेटर्स होते हैं, एक रूट लेटर से कई सारे वर्ड्स बनते हैं। इट इज जस्ट लाइक दैट। चाहे कुरान ले लें, कुरानिक लैंग्वेज ले लें, चाहे तुम दूसरी कोई भी लैंग्वेज की किताब लें, सिर्फ आपको सोचना है, अपने दिमागों से आपको क्या करना है, सोचना, समझना है। अगर आप ऐसे सोच और समझ से काम लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, और इस तरीके से पढ़ते रहेंगे जैसे कि आपको सिखाया जा रहा है। रूट लेटर के साथ एक्स्ट्रा लेटर्स आते हैं तो एक्स्ट्रा मीनिंग देते हैं, बलागा उसके साथ जुड़ जाता है, बलागा मतलब द एलोक्वेंस उसके साथ जुड़ जाता है, एक्स्ट्रा मीनिंग के साथ, एक्स्ट्रा वर्ड्स के साथ एक्स्ट्रा मीनिंग विद बलागा आ जाता है। जब हम ऐसे सोचेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो यू विल बिकम मास्टर्स ऑफ दिस लैंग्वेज। मास्टर्स आप कर लेंगे, एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो कर लेंगे आप। चलो मास्टर नहीं करते भी ओके, कोई बात नहीं, ग्रेजुएट तो बन जाएंगे आप, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतने आसान नहीं है। मेक इट ए पॉइंट, ये इस तरीके से नियत करें, आप अपने दिमागों में बिठाएं बात, ऐसी कुछ भी मुश्किल नहीं है। वर्ड टू वर्ड, जैसे कि स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर में समझा रही हूँ, बात से बात किस तरीके से लेकर आगे बढ़ा रही हूँ, तो इसमें ना समझ में आने वाली बात ही क्या है। आप इंग्लिश में भी न्यू वर्ड सुनते हैं, आप फौरन दिमाग में बिठाते हैं। ऐसे ही अरबी के न्यू वर्ड सुनते हैं तो हम दिमाग में नहीं बिठाते, फौरन हमारे दिमाग में वो कीड़ा कुलबुला उठता है, तो वह शैतान बात डाल देता है, भाई नहीं सीखो, ये बहुत मुश्किल है, और कहते हैं भाई ये बातें तो ऐसी ही हमारे सरों पर से गुजर जाती। अस्तगफिरुल्लाहिल-अज़ीम, ऐसी कोई बात नहीं, ये शैतानी वसवसा है। तो इस वसवसे को हमको निकालना है, भगाना है, और ये एक पॉइंट बना लेना है कि इट्स वेरी वेरी इजी। इंग्लिश में भी आप ऐसे ही सीखते हैं ग्रामर, अगर ग्रामर नहीं सीखेंगे तो हमको सही से इंग्लिश बात करनी नहीं आती है। इसी तरीके से अरबी लैंग्वेज में भी होता है। तो जस्ट लाइक फ़अला, 3 रूट रेडिकल्स वाला कलिमा, जस्ट लाइक फ़अला, बअसा, दरसा, बदअ, कतबा। देखिए मैं क्या कहूँ माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ और आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ये जो रूट लेटर्स आते हैं दे आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल होते हैं पढ़ने में, समझने में। इसके साथ आप एक्स्ट्रा लेटर्स ऐड करेंगे तो एक्स्ट्रा मीनिंग यू विल गेट। वो कौन से वक्त पे कौन सा एक्स्ट्रा लेटर ऐड करना है, ये थोड़ा सा सीख लेंगे आप, रूल के मुताबिक आप ऐड करते चले जाएंगे। जैसे हम फार्मूला याद करते हैं, फार्मूले के बगैर हमारी जिंदगी भी नहीं है। जिंदगी का कोई काम हम फार्मूले के साथ ही करते हैं, कोई भी काम ले लें, हाँ उसको हम नाम नहीं देते कि वी आर यूजिंग दिस फार्मूला। तो these root letters, I'm so fascinated about these root letters. मेरे ये दिलो दिमाग से अंदर से आवाज आती है कि ये इतने खूबसूरत अल्फाज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताए हैं, इतने फैसिनेटिंग बनाए हैं,
اور اتنے کیا بنائے ہیں, اتنے enjoyable بھی بنائے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. If we learn these root letters with an enjoyment, beautifully, if we want to learn, اور if we learn beautifully, تو یہ very fascinating بن جائیں گے ہمارے لیے. دنیا کا ہر کام ہم کو فیسینیٹ کرتا ہے, ہم دنیا کے دوسرے کاموں کو انجوائے کرتے ہوئے کرتے ہیں, تو ہم ان عربک الفاظ کو کیوں نہیں انجوائے کرتے ہوئے ہم سیکھتے ہیں. اتنا کیوں مشکل سروں پر چڑھا کر بیزارگی کے ساتھ, بڑی مشکل سے, نہ وقت ہوتا ہے آپ کے پاس, نہ سننے کے لیے, نہ سمجھنے کے لیے, نہ پڑھنے کے لیے, ایسے کیوں کرتے ہیں ہم, کیوں کرتے ہیں ہم, واللہ اعلم. So Arabic language is very beautiful. These verbs are very, very beautiful. They are so fascinating and they're enjoyable also. خرج, آج کا جو میں نے روٹ ورب لیا ہے, خرج, he left. جلسا, just like خرج, جلسا, he sat. سب میں کیسے آ رہا ہے, he, hidden ضمیر, hidden ضمیر, ضمیر مستتر is the file of this verb. Again, ذهب, he went, he went. رجع, he returned. تو کہاں سبوں میں, سبھی وربس میں دیکھیں ہی آ رہا ہے. تو کیا ہے یہ ہی, what is this he? This is the hidden ضمیر مستتر. Okay, this is the file. Just like خرج, ذهب, سمع. اب یہاں پہ خرج, فتح فتح فتح, 3 فتح آئے, یہاں فتح کسرہ فتح آیا ہے. سمع, he heard. شریبہ, شریبہ, he drank. past tense کے یہ سارے words. اب یہی past tense verb ہم present tense میں بھی ڈالتے ہیں. اوکے اوکے کہ بھائی اینی ڈاؤٹ رہا تو مجھے ابھی سے پوچھے, معلوم کرے. سمع, شریبہ. اب یہاں پہ the second radical is taking kesra in these 2 words. Okay, here karuma, the third یعنی کہ second of the center radical, center letter is taking dhamma here in this verb. بعد, بعد, فعل, خرج, all the 3 یہی اس میں کس میں, ایک فعل میں یا خرج میں, all the 3 letters they carry fatha. Here fatha, kesra, fatha. سمع, شرب. Okay, so all past tense verbs will have a fatha on the first and third radical. First and third, کوئی بھی verb لے لیں past tense کا, the first and the last یعنی تو third radical they will take only fatha, fatha, fatha. ہاں, the second radical جو ہوتا ہے, the center radical ہوتا ہے, may take kesra or it may take dhamma. فتح کسرا دمہ لے سکتا ہے, but the first and the last radical they take only فتح فتح. پہلا اور اخیر radical اور the root letter یہ اس کے اوپر فتح ہی ہوتا ہے. یہ مادہ یا مادے کے 3 الفاظ ہوتے ہیں, پہلا مادے کا پہلا لفظ اور آخر لفظ کے اوپر فتح فتح ہوتا ہے. بیچ والا مادے کا بیچ کا حرف وہ کسرہ لے سکتا ہے یا فتح لے سکتا ہے یا ضمہ لے سکتا ہے. So all past tense verbs will have a fatha on the first and last radical. These are all very simple rules. یہ rules کی شکل میں یاد رکھ لیں آپ. اوکے, مگر میننگ چینج نہیں ہوتا. کسرہ اور ضمہ لے رہا ہے بول کے meaning does not changes. Now see here, سمع, شرب, كرم, بعد, and here ذهب. ذهب. See here, all the 3 radicals they are taking fatha, fatha, fatha. In this case, sami'a mein the first and second last radical they are taking fatha. The second or the center radical is taking kasra. In this case, karuma, the first and last radical they will take fatha. The second radical will take dhamma. So
सेंट्रल रेडिकल को देखें, फतहा, केसरा एंड दम्मा. द फर्स्ट एंड लास्ट रेडिकल दे रिमेन सेम, यानी कि फतहा फतहा ही होता है उस पर. अब इसको समझने में बहुत मुश्किल हो रही है हमको, इतने अच्छे से आसानी से समझाया जा रहा है आपको. और सबों में देखिए द दमीर इज हिडन या मुस्ततिर. दमीर फाइल, दमीर मुस्ततिर. He heard, he went, he was honorable. Karuma ka meaning he was honorable. Ba'uda, he was far. देखिए आप, समीआ कसरा कसरा. करुमा में दम्मा आया, दम्मा. बाउदा बाउदा. तो यहाँ भी आया. अब यहाँ पे इसको देखिए, कसरा कसरा लिया. समीआ शरीबा. The middle radical in past tense verbs can have any of the three vowels. There are three vowels, फतहा दम्मा कसरा. ये कोई भी ले सकता है, या ज़हबा या समीआ, यानी कि फतहा कसरा और दम्मा. तो देखिए दोनों में भी दम्मा दम्मा है, यहाँ ऊपर दोनों में भी कसरा कसरा है. सिर्फ बीच का रेडिकल, यानी कि बीच का मादा, इसके ऊपर फतहा आ सकता है, कसरा आ सकता है, दम्मा आ सकता है. पहला और आखिर मादे का हुर्फ वो सिर्फ फतहा ही लेता है. ये पास्ट टेंस में है, फेले मादी में है. पास्ट टेंस और मादी या मादी, माजी जो उर्दू में कहते हैं, उर्दू में भी हम पढ़ते हैं फेले माजी. वहां भी अपने बातचीत में इतना हम इस्तेमाल करते हैं. हम बातचीत में तो ऐसे सब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मगर हम समझते नहीं. क्यों नहीं समझे? ये हमारी खराबी थी कि हमने नहीं समझा. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. नाउ अब आएंगे हम, ये जो सारे हमने पढ़े, ज़हबा, समिआ, शरिबा, करुबा, बाउदा, तो इनको फ़िअलुन सहीहुन कहा जाता है. फ़िअलुन सहीहुन, यानी कि फ़िअल सही कहा जाता है. यानी कि सही मतलब करेक्ट, राइट, राइट वर्ब्स, करेक्ट वर्ब्स, नॉर्मल वर्ब्स. क्यों कहा जाता है इनको फ़िअलुन सहीहुन? क्योंकि जो तीन रेडिकल हैं, सीन मीम आइन शीन राबा, दे आर not the weak letters. They are all the three root letters of a verb. They are sahih verbs, muhaqqaqa verbs, specific words होते हैं. With the sahih mukhraj, उनका मुखरज के साथ fixed मुखरज होता है. Alif, waw, ya, they are called as the weak letters. Alif, waw और ya, ये क्या कहलाते हैं? वीक लेटर्स, सिक लेटर्स कहलाते हैं. अगर वो इसमें शामिल हो जाए, सीन की जगह अगर कोई वीक लेटर आ जाए, तो वो गैर सहीहुन होते हैं. दे आर नॉट राइट, दे आर नॉट करेक्ट. ओके, फ़िअलुन सहीहुन, अल-फ़िअलु सहीहुन. ओके, नाउ अब चंद अल्फाज ऐसे भी हैं जिनको डॉक्टर्स की जरूरत होती है. यानी कि किसको डॉक्टर की जरूरत होती है? किसको एम्बुलेंस में बैठकर हॉस्पिटल्स को जाने की जरूरत पड़ती है? जो बीमार होता है उसको ये सारे गैडजेट्स की जरूरत पड़ती है. ओके, ओके और नॉट? जी मैम. दे आर कॉल्ड एज द वीक वर्ब्स. फ़िअलुन सहीहुन, फ़िअलुन गैर सहीहुन, मतलब वीक वर्ब्स. इसको कहते हैं फ़िअलुन मुअत्तलुन, वीक वर्ब्स. क्योंकि जब एक इंसान बीमार होता है तो उसको देखभाल की जरूरत होती है, उसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं. ओके, अब वीक वर्ब्स का एग्जाम्पल क्या है, कैसे आप समझ सकते हैं? सी हियर, वजदा, या ईसा. व इज अ वीक लेटर, हमजा इज अ वीक लेटर, यानी कि अलीफ, अलीफ, वाव और या आते हैं. तो ये तीन ही लेटर्स हैं. ये क्यों वीक लेटर्स कहलाते हैं? कोई मुझसे पूछे कि भाई इनको वीक लेटर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका मुखरज इज नॉट फिक्स्ड. द मुखरज, द पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ दीज थ्री वर्ड्स, अलिफ, वाव, या, इज नॉट फिक्स्ड.
अब देखिए मैं तजवीद भी ले आ रही हूँ, क्योंकि इसलिए तजवीद और ग्रामर दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों साथ साथ चलते हैं। फेलुन सहीहुन के सारे लेटर्स they have proper, yeah, they are called as the huruf muhaqqaqa. With haq we recite, we read. Okay, अलिफ वाव और हमजा इनका सही मखरज नहीं होता है, प्रॉपर मखरज नहीं होता है। मखरज तो सभी का होता है, बट देर गैर मुहक्कका होते हैं, मुस्तहिक्का वो नहीं होते। एक है उनका वाव, अब होंठों को सिर्फ सर्कल अप करके हम अदा कर रहे हैं, आवाज आ रही है बाहर फ्रॉम द ओरल कैविटी ऑफ द थ्रोट एंड द माउथ, वहां से आवाज निकल रही है। या का भी क्या कर रहे हैं, we are just elevating the center part of the throat, but the voice is coming, air is flowing through the ये है ना oral cavity of the throat and the mouth. Okay, just like hamza, alif, alif भी वही होता है। So they are called as the weak verbs. इसको तुम फिक्स नहीं कर सकते, आवाज यहीं से आ रही है। जैसे लाम, लाम का अल का प्रॉपर मखरज है। नून, अन प्रॉपर मखरज है। बा का प्रॉपर मखरज है। कोई भी वर्ड ले, except alif, waw and ya. And alif, waw and ya, they are called as the weak letters, and they are also called as huruful maddiya. वो कब मद्दिया बनते हैं? इंशाल्लाह हम उसको तजवीद में हम इंशाल्लाह वो दैट इज द फर्स्ट रूल ऑफ द तजवीद, उसको हम सबों ने शायद पढ़ा है। तो सो वाव एंड या, वाव एंड या, दीज आर द वीक लेटर्स, इसलिए इनको वीक वर्ब्स कहते हैं। वीक वर्ब्स कब कहलाते हैं? जब ये रूट लेटर का हिस्सा बनते हैं। वाव, या एंड अलिफ जब ये रूट लेटर्स का हिस्सा बनते हैं, अलिफ को भी हम ज्यादातर नहीं लेते, वाव और या को लेते हैं। अलिफ भी आता है, इंशाल्लाह उसको भी हम देखेंगे जब वर्ब्स पढ़ेंगे। ओके, तो नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, फ़िअलुन सहीहुन एंड फ़िअलुन मुअत्तलुन। मुअत्तलुन इज वीक वर्ब, फ़िअलुन सहीहुन करेक्ट वर्ब, राइट वर्ब्स। अब जो उसके लिए सही के लिए जो भी लफ्ज डालते हैं, आप जो समझते हैं वो डालें आप। तो नाउ कॉन्जुगेशन टेबल भी हमको देखना है। जैसे कि आप सबों के 5 उंगलियां होते हैं, 5 उंगलियां देखिए, आप सबों के पास 5 उंगली, निकाले अपनी उंगलियां। तो सी हियर, जो पहली होती है इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर के 3 हिस्से होते हैं, हुआ, हुमा, हुम। हुआ इज ही, हुमा इज दे टू, डुअल में आता है, अलीफ ऑफ डुअलिटी, एंड हुम 3+, ये जमा होता है मोर देन 3। आप हाथ की उंगलियों से अच्छे से ऐसे करके गिन सकते हैं। अब ये आता है द इंडेक्स फिंगर के जो आते हैं 3 हिस्से, हुआ, हुमा, हुम, थर्ड पर्सन मैस्कुलाइन प्रोनाउंस कहलाते हैं, या इसको हम नाम दे सकते हैं। हमने ये पढ़ा है कि मैस्कुलाइन प्रोनाउंस क्या होते हैं एंड फेमिनाइन प्रोनाउंस क्या होते हैं। थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। थर्ड पर्सन दैट इज गायब, दैट इज एब्सेंट होता है, हमारे पीठ पीछे होता है। सेकेंड पर्सन वो होता है जो सामने होता है। थर्ड पर्सन वो होता है जो बात करने वाला होता है, मुतकल्लिम जिसको कहते हैं, जो बात करने वाला होता है। इतना तो हम सभी जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, होता है, जानते ही हम। सो इंडेक्स फिंगर के हुआ, हुमा, हुम, दे आर थर्ड पर्सन मैस्कुलाइन प्रोनाउंस। ओके, सेकेंड फिंगर की तरफ आते ही ये हम इस्तेमाल करते हैं फेमिनाइन के लिए। फेमिनाइन के लिए हिया, शी, हुमा फिर अगेन डुअल के लिए, हुमा, हुमा दोनों मर्दों के लिए और औरतों के लिए हुमा डुअलिटी के लिए इस्तेमाल होता है। यहीं पे हम स्टॉप करेंगे, हुन्ना और उसके बाद की चीजें बाद में लेंगे। तो हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, इतने को लेंगे। ओके, नाउ यही देखिए, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, इतना लेकर आपको मैं कराऊंगी। कॉन्जुगेशन टेबल, हाउ टू डू द कॉन्जुगेशन टेबल, ये मैं ले रही हूं आप लोगों को समझाने के लिए। नाउ सी कॉन्जुगेशन ऑफ
past tense verb. इनका एक टेबल सा ही बनता है. ओके, जलसा यहाँ पे है द दमीर मुस्ततिर. he sat. ذهب he went. خرج he left. शरिबा he drank. अब इसके अंदर he जो होता है, what is he? That is हुआ. जलसा मतलब he sat. जलसा he sat. हुआ उसके अंदर दमीर मुस्ततिर है. ذهب हुआ ذهب. خرج हुआ खरज. मगर हुआ नहीं आता है. हुआ is hidden inside that verb. Okay, so हुआ is the singular third person masculine. Okay, he जो आ रहा है ये क्या आ रहा है? singular third person masculine के लिए इस्तेमाल होता है हुआ. हुआ जलसा, मगर हुआ नहीं लिखा जाता. क्या लिखा जाता है? वो किस तरीके से लिखा जाता है? फिर अगेन ذهب he went. खरजा और ذهب, मैं यहाँ ذهب को मैंने लिया है ताकि आपको एक दूसरा और आइडिया, क्योंकि आप अपनी बुक में खरजा और ذهب पढ़ते आ रहे. तो कॉन्जुगेशन टेबल ऑफ ذهب बनाएंगे हम. ذهب he went. व्हाट इज दिस he? दैट इज हुआ. he हुआ, he went. तो doer of action is hidden in this ذهب. فاعل मुस्ततिर. फाइलुन मुस्ततिर. मुस्ततिर मतलब हिडन. फाइल कैसे है यहाँ पे? हिडन है यहाँ. ओके, आर यू फॉलोइंग मी? जी मैम. तो सो ذهب हुआ ذهب, फाइल मुस्ततिर, इसको हमने स्टार लगाया है. सी हियर, येलो येलो कलर, मुस्ततिर को भी येलो कलर दिया है मैंने, यहाँ स्टार को भी येलो कलर दिया है. तो जब ذهب आता है तो फाइलुन मुस्ततिरुन होता है. मुस्ततिर मतलब हिडन फाइल होता है. बकिया सारे वर्ब्स में फाइल क्या होता है? खुला हुआ होता है, अपैरेंट होता है. अपैरेंट होता है मतलब बारिज होता है, उसको बारिजुन कहते हैं अरबी में. इंग्लिश में अपैरेंट कहते हैं, जाहिर कहते हैं, जाहिरुन. फाइलुन मुस्ततिरुन, फाइलुन जाहिरुन होता है. अब यहाँ इन फर्स्ट केस ज़हबा में हुआ इज मुस्ततिरुन. ओके, बहुत ही सिंपल है समझना, बहुत ही आसान है. ज़हबा में क्या होता है? फाइल मुस्ततिरुन. ओके, ज़हबा, अब मैंने अलीफ लगाया है. सी हियर हुमा, हुआ तो इसके अंदर मुस्ततिर है. ज़हबा में हुआ इज मुस्ततिर. हुमा द डुअलिटी प्रोनाउन, द प्रोनाउन ऑफ डुअलिटी. हुमा अलीफ. ज़हबा, ज़हबा को हमने क्या ऐड किया? अलीफ. ये हुमा का अलीफ ऐड किया. दिस इज द फाइल बारिज. फाइल बारिज, अपरेंट दमीर. फाइल इज अपरेंट, फाइल इज दिखाई दे रहा है अलीफ की शक्ल में. हुआ में दमीर क्या है? ज़हबा में हुआ की दमीर छुपी हुई है. हुमा में माँ अलीफ की शक्ल में जाहिर हो रही है, दिखाई दे रही है. सो अलीफ इज द डूअर. ज़हबा इज द वर्ब. ज़हबा इज द वर्ब. This alif is the doer. They two people went. They two went. Okay? Okay क्या भाई? ذهب 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 ba. ذهب one count. ذهب one count. ذا one count, ha one count, ba two counts. Because of alif. अगर आपने पढ़ने में गलती की, थोड़ा भी खींचा, जो हम बदकिस्मती से हम ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं, तो you will change the number. ذهب अलीफ is अलीफ of duality. कोई भी वर्ड ले. खरजा खरजा, ذهب ذهب, समिआ समिआ. ओके, व्हाट इज दिस अलीफ? जब वर्ब के साथ अलीफ आता है एट द एंड ऑफ द वर्ब, तो सी दिस इज द दमीर. दमीर बारिज,
फाइल बारिजुन, फाइल अपरेंट होता है, खुला हुआ होता है, जो तुमको दिखाई दे रहा है। इसमें हुआ, ज़हबा में हुआ छिपा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ डुअलिटी, अलीफ ऑफ डुअलिटी यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। दैट इज द डिफरेंस। सो प्रोनाउन हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, ये आते हैं ये दमीर मुनफसिल, तो दमीर के साथ हमको पढ़ना पड़ता है। ओके, नाउ तो थर्ड इसमें आएंगे। अब हम ज़हबू को लेंगे। ज़हबू, ज़हबा पढ़ा हमने, ज़हबा अलीफ जो है ये बारिज है, अपरेंट है। हियर ज़हबा में सीधा स्टार मुस्ततिर, छुपा हुआ है। ज़हबू, यहाँ पे है ज़हबा, ये ज़हबा था, वाव हमने ऐड किया, वाव इज द साइन ऑफ प्लूरलिटी, ऐड किया वाव, नॉट द अलीफ, only वाव। ذهبوا, वाव is the doer, ذهبा is the verb। अब यहाँ वाव, ذهبوا, ذهبوا, पढ़ने मुश्किल, बोलने मुश्किल, लिखने भी मुश्किल, इसलिए वाव की निस्बत दम्मा से होती है। वाव, वू, वाव की निस्बत किससे होती है? दम्मा से निस्बत होती है। वाव से पहले अगर जबर आ रहा है तो देन यू कैन, दिस इज ए रूल कि यू कैन चेंज द हरका ऑफ द लास्ट रेडिकल ऑफ द वर्ब as the वाव related to, the sound of वाव is related to, the sound of वाव ऊ दम्मा होता है, वू दम्मा, तो इसलिए बा फतहा को वाव से बदल दिया गया, वाव की निस्बत से। ज़हबू, पढ़ने में आसान, लिखने में आसान, समझने में भी आसान। और द ग्रेट अरब्स they used ease on their tongues, उनका एक रूल है ये। according to that rule ज़हबू, ज़हबू कैसे पढ़ी मुश्किल होता है, इसलिए ज़हबू बना दिया गया। they all went, plural में they all went, so वाव is extra here, ये अलीफ, not the वाव, अलीफ जो ब्लैक इंक में है, this is extra, see same अलीफ here, it is ज़हबा, it is अलीफ of duality, in plural वाव के साथ जो अलीफ आता है, this is extra अलीफ, अलीफ of फारिका जिसको कहा जाता, फर्क करने वाला। तो इसके बाद जो भी वर्ब आता है उसको, और उसको जो भी वर्ड आता है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, काटने के लिए, यहाँ प्लूरल में, खालिस प्लूरल में, सिर्फ और सिर्फ प्लूरल में वाव के साथ अलीफ का एडिशन होता है। इन फेले मादी, ऐसे देखते ही आपको समझना चाहिए, अलीफ को देखते ही समझना चाहिए वाव के साथ कि इट इज फेले मादी। हुम, meme is the sign of plurality in domir, but here in verb waw is the sign of plurality. Okay, so huwa dhahaba, huma dhahaba, hum dhahabu. Okay, just like that. Here की तरफ आएंगे, dhahabat, अब यहाँ dhahaba as it is ऐसे ही verb, ता हमने ऐड किया क्योंकि हिया इज फेमिनाइन, थर्ड पर्सन फेमिनाइन। अब फेमिनाइन शी को हमने क्या किया, ताए तानीस औरतों वाली ता लगाया, जस्ट टू ज़हबा से मुज़क्कर से मुअन्नस को डिफरेंशिएट करने के लिए ताए तानीस लगाई गई। दिस इज नॉट द, दिस ता इज नॉट द डूअर ऑफ द एक्ट, डूअर ऑफ द वर्ब। ओके, it is only the sign of femininity, tae tanis, the ta femininity, zahaba zahaba remains the same, सिर्फ differentiate करने के लिए मुज़क्कर टू मुअन्नस, हुआ टू हिया, ये ताए तानीस लगाएगी। ताए तानीस मतलब क्या है, ता विद सुकून, ता विद सुकून is the ताए तानीस, indicates this ताए तानीस क्या इंडिकेट करती है, मुअन्नस को इंडिकेट करती है, मुअन्नस को बताती है। तो ये बन गया ज़हबत, ज़हबत। ओके, ज़हबत। और इसकी भी, इसमें भी क्या है, फाइल इज मुस्ततिर,
स्टार लग गया उसको भी. This ta is not the doer. ये doer नहीं है. It is a sign of femininity. ज़हबा ऐसे ही. हिय ज़हबत. तो यहाँ भी क्या है? फाइल मुस्ततिर है. In the case of ज़हबा, the file is baris, apparent. ذهبوا, file is apparent. ذهبت, file is मुस्ततिर. अब हुमा तो remains the same होता है. ذهبتا, अब आ रहे हैं हम. ذهبتا कैसे आता है? What is this ta? And what is this alif? So what is this ta? Ta, that indicates a female doer. Ta, female doer है ये, and alif is a doer doer for the duel. ذهبا is the verb. अब ये alif of duality लगाया हमने. ذهبتا, ता आता है औरतों के लिए. Female doer. Two females went. Okay? ذهبتا. अब ذهب आया है. ذهب, ये क्या है? ये ذهب. ذهبنا. अब यहाँ पे है feminine plural verb, third person. ذهبنا. तो ذهبा को नून ने निस्वान लगा दे. ता of female doer and नून of निस्वान. फेमिनाइन प्लूरलिटी के लिए ये नून निस्वान कहलाता है इन अरबिक. इंग्लिश में फेमिनाइन प्लूरलिटी, द नून ऑफ फेमिनाइन प्लूरलिटी, नून निस्वान. ذهبنا, नून निस्वान जब आता है तो द थर्ड रेडिकल विल टेक सुकून. ذهبنا नहीं आता है. ذهبنا ना फीमेल के लिए नून निस्वान है एंड प्लूरल के लिए all the female, यानी कि the female 3 plus more than 3 they went. Okay, इतना हुआ. थर्ड पर्सन का masculine and feminine हुआ. हुन्ना इधर ذهبنا. हुमा ذهبتا. हुन्ना ذهبنا. ذهبنا ना नहीं है. ذهبنا ना कहेंगे तो it becomes, फिर again it becomes, क्या होता है? ना जब आता है तो प्लूरल ज़मीर हो जाता है. So we completed third person past tense verbs. तो ये कैसे बनता है, कैसे आया है, मैंने सब चार्ट के जरिए समझा दिया है. तो ذهبتا, ذهبتا, ता जब आई है ता ऑफ फीमेल डुएर होता है. अलिफ इज द डुएल अलिफ, अलिफ ऑफ डुअलिटी. दो फीमेल डुएल, ये जो अलिफ है डुएल के लिए आता है. ता इज द फॉर फीमेल. टू फीमेल डुएर्स. ذهبتا, तीनों के ऊपर फथा फथा फथा, चारों के ऊपर भी. ذهبنا, ना इज ये नून निस्वान जो आता है. The third radical of the verb will take sukoon. ذهبنا. So here we have completed third person past tense. Now अब इसका चार्ट से थोड़ा सा बनाएंगे. हुआ ذهب, हुमा ذهبا, हम ذهبوا. पढ़ें इसको सभी. हुआ ذهب, هما ذهبا، هم ذهبوا، هي ذهبت، هن ذهبنا، أنت ذهبت. मैस्कुलिन ये है. ये तीनों, इसमें हुन्ना का नहीं कहा प्लीज. जब आप इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो नहीं करते आप लोग, क्या नोट्स बनेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे. यही है कि एक सिस्टम नहीं है हमारे. जो कहा जाता है उतना नहीं पढ़ते. मैंने कहा इसको पढ़ें, मैस्कुलिन को पढ़ें. मैंने पढ़ के सुनाया भी. हुआ ذهبا, हुमा ذهبا, हम ذهبوا. मगर आप पढ़े हुन्ना करके पढ़े. आप क्यों ऐसा करते हैं? किसके फोन्स खुले हुए प्लीज? किसका इतना डिस्टरबेंस आ रहा है? Because we have completed third person past tense rule. Third person, muzakkar, muannas, feminine and masculine. This is here feminine. Here dhahabat. The doer is mustatir. Huma dhahabata.
hunna dhahabna, this is feminine. Third person feminine. This is the third person masculine. So far we have completed this much. अब इसमें इतना समझाने के बावजूद कंफ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये सब बातें बोलेंगे तो it's very clean and clear that we are not at all doing any paying full attention to this class. तो मेरा ये देखिए कैसे कैसे हुआ जा रहा है. तो ना सेकंड पर्सन की तरफ आएंगे. अंत ذهب, अंतुमा ذهب, अंतुम, अंतुम, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन. This is the first person. ذهب, मैंने सब सारे लास्ट रेडिकल को मैंने सुकून डाला है. तो नाउ अंत ذهب, अंत ذهبता. अब सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो होता है जो आपको मैंने समझाया था. अंतुमा, अब ये क्या बनता है? अंतुमा ذهب, ذهب तुमा, ذهب तुमा. अब इसको बोले अंतुम, अंतुम सेकंड पर्सन, अंतुम, ذهب तुम, ذهب तुम. ओके, अंती, अंती आता है ذهب. जब कहा पढ़ने के लिए कहा जाता है तब पढ़े आप, दूसरे वक्त में ना पढ़े आप. अंती ذهبती, ذهب, ذهب, ذهب. The last radical will take sukun. ذهبنا में first, ذهبنا में first time the third radical of the verb takes sukun. तो वो sukun of the third radical will continue till the first person. Okay, अंती ذهبती. Ink जो कलर डाला है उसको देखकर भी आप समझ सकते हैं. अंती ذهبती, अंतुमा, अंतुमा ذهبتما, अंतुन, अंतुन ذهبتن. Just like that, first person. ذهب, I went. क्या आना चाहिए? आना आना चाहिए. मैंने यहाँ भूल के हुआ डाल दिया है. I went, ذهبت, I went. तो वहां पे वही होता है हुआ. यहाँ आना आना चाहिए, मैंने अब डाल दिया है हुआ, तो प्लीज ये मेरी मिस्टेक है. अना, अना ذهبت. उसके बाद अना के साथ क्या आता है डुअलिटी के लिए? नहनु ذهبنا, नहनु ذهبنا. तो I went, we went. We मतलब मेल और फीमेल दोनों के लिए यही है. ذهبتु, ذهبنا. I went मेल और फीमेल. We went मेल और फीमेल. टू के लिए भी यही है, मोर देन टू के लिए भी. अब ये इतना मैं कराती रहूंगी, बोलती रहूंगी, कराती रहूंगी कि इट विल कम टू यू रिपीटेडली टाइम्स. जब मैं रिपीट करती रहूंगी आपको ऐसे ही आ जाएगा. तो यहाँ भी मैंने आना आना वो बस वो जो बनाया था उसको मैंने डाल दिया है. अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, ये मेरी गलती है, ये टाइपो एरर है. हुआ नहीं लिखना चाहिए था, हुमा नहीं था. फर्स्ट पर्सन में अना और नहनु आना चाहिए था. अब देख रही हूँ आपको कराने के वक्त पे. थर्ड पर्सन, अब ये सारा टेबल है. फर्स्ट, थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन. अब इसको आप सभी पढ़े. हुआ ज़हबा, आप पढ़ लेकर जाए. आपको दिखाई तो दे रहा है. हुआ ज़हबा, मा ज़हबा, हिया ज़हबत, हिया ज़हबता, हुन्ना ज़हबना, अंत ज़हबतु, अंतुमा ज़हबतुमा, अंतुम ज़हबतु, अंतुन्ना ज़हबतुन्ना, अना ज़हबतु, नहनु हुआ ज़हबा is very important, very very important. Pay attention. When the attached pronoun, these are all attached pronouns, has a sukoon. See here, has a sukoon, यानी कि साकिन pronouns. The third radical will always have a vowel. ये प्रोनाउन को जब सुकून आता है, सी हियर, अलिफ के ऊपर सुकून, वाव सुकून, ता सुकून, तो द थर्ड रेडिकल जो आता है ज़हबा का,
तीसरा रेडिकल जो होता है वर्ब का, ओके, द फेल का जो तीसरा रेडिकल, यानी कि बा इज द थर्ड रेडिकल हियर. ऑलवेज टेक a vowel. ذهب ذهبوا ذهبا ذهبا تا ذهبتا تا تانيز ये ता of femininity. ओके, ये है जो ग्रीन कलर में है. These are the attached pronouns. Attached pronouns when they will have sukoon and those attached pronouns. So then the third radical of the verb, the third radical, 1 2 3 1 2 3, the third radical of the verb will have a vowel sign, maybe fatha, maybe dhamma. Okay, will have a sign. कब लेता है sign ये? ذهبا ذهبوا ذهبت ذهبتا, when the attached pronoun will have a sukoon. Very important, you have to pay attention this. अब third radical will take sukoon. ये कब होता है? ذهبنا. अब हमने पढ़ा ذهب ذهبنا, प्लूरल यानी कि हिया हुमा तक ही होता है. उसके बाद the third radical will take क्या होता है? सुकून. तो साकिन pronouns, see here, alif is the pronoun, waw is the pronoun. ये ता तो तायतानीस है. ओके, ता फेमिनिटी इसको छोड़ रहे ही हम. This alif is the pronoun, they have a sukoon. So when they attach to a verb, जब ये किसी verb या fail के साथ लगते ही, तो they will always have a vowel sign. The third radical of the verb, ये तीसरा मादा, verb का तीसरा यानी कि fail का तीसरा मादा, उसके ऊपर हमेशा क्या होता है? साइन होता है. कब होता है साइन? जब उससे अटैच यानी कि लगा हुआ दमीर, लगी हुई दमीर, उसके ऊपर सुकून हो, तो ये वर्ब का तीसरा रेडिकल, तीसरा मादा, मादे का हुर्फ, उसके ऊपर साइन होता है. ज़हबा, see here, ba, bu, ba, ba, आया साइन. Attached pronoun will have sukun. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट रूल. तो आपको ये देखना है. अब इसके बाद देखेंगे हम हुन्ना ज़हबना, यहाँ से द थर्ड रेडिकल विल टेक सुकून. ज़हब, अब यहाँ पे नून, दिस इज द अटैच्ड प्रोनाउन, नून निस्वान, नून निस्वान. अब यहाँ पे ता है, ता ऑफ सेकंड पर्सन, अंता ता, अंतुमा तुमा, अंतुम तुम. These are all the attached pronouns. Attached pronoun के ऊपर साइन होता है, ता, ती, तुम, तुमा वगैरह वगैरह, तुन्ना. तो ऐसे में the third radical of the verb, ये verb यानी कि फेल का तीसरा मादा will take सुकून, will take सुकून. أنا ذهبت, أنا ذهبت, نحن ذهبنا, هن ذهبنا. तो बा ذهب का the third radical will take सुकून. कब लेता है the third radical of the verb will take sukoon? When the attached pronouns will have vowel. They are not sakin. Ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna, ये सब के ऊपर ये vowel है, हरकत है. तो इसलिए ये verb का आखिर radical will take sukoon. Any doubt in this? Any doubt in this? तो मुतहर्रिका, pronouns मुतहर्रिका कब होते हैं? Start off with a letter that has a vowel sign. जब ये attached होते ही verb के साथ, तो the third radical of the verb will always have a sukoon. तो ये अवजान और कलिमात, मादा और वजन, रूट लेटर्स एंड पैटर्न्स पढ़ना बेहद बेहद जरूरी है. तो मादा देखेंगे. मादा मतलब रूट लेटर्स.
मादा वो हुर्फ होते हैं, ये होते हैं मादा, द रूट लेटर्स, दे आर द असली हुरूफ. असली मतलब प्योर हुरूफ होते हैं, रियल एंड प्योर लेटर्स ऑफ द वर्ब होते हैं, जिनसे ही उनसे ही अल्फाज बनते हैं. अब यहाँ देखिए यहाँ पे कितना आया, ज़हबा 3 लेटर रूट था, उससे हमने कितने बना दिए, 6 6 12 12 भी 2 14 14 सीगे बना दिए, 14 अल्फाज बने. ओके, जस्ट लाइक दैट. तो 99% अस्मा. अस्मा मतलब नाउन्स एंड अफ़आल एंड वर्ब्स. नाउन्स एंड वर्ब्स, अस्मा और अफ़आल के असली हुरूफ क्या होते हैं, 99%. उसके असली हुरूफ, रियल रूट लेटर्स, ओनली 3 रूट लेटर्स होते हैं. These are all the simple rules. आपको हर वक्त जैसे आप खाते पीते सांस लेते हैं ऐसे याद रखना चाहिए. So this is called as the madda. Madda मतलब root letters. वजन is the pattern. पैटर्न क्या होते हैं, फ़ाइल लाम कलिमे का वो सांचा, सांचा होते हैं, पैटर्न होते हैं जिसमें हुरूफ डाले जाते हैं. जो भी पैटर्न आपको दिया जाए उसके अंदर अगर आप हुरूफ डालें तो वो दैट पैटर्न इज कॉल्ड एज द वजन. उसका एक पैटर्न बन जाता है. कल हमने पढ़े थे जमा मुकस्सर के डिफरेंट पैटर्न्स पढ़े थे. वो पैटर्न वो होता है जिसके ऊपर तुम कोई भी रूट लेटर डालो तो उसका वो पैटर्न बनकर आपके सामने आता है. जस्ट लाइक सोने के जेवरात बनाते हैं तो जिस सांचे में डालते हैं वो ढलकर आ जाता है. जो भी पैटर्न में डाले जाते हैं वैसे उसका ये वजन बनकर निकल आते हैं, कि वो ढाले जाते हैं. तो सो वजन और मादा, मादा और वजन. मादा इज द रूट लेटर, वजन इज द पैटर्न. पैटर्न फॉर्म कहते हैं इसको, वजन फॉर्म, पैटर्न सांचा कहलाए जाते. मादा को देखेंगे हम. मादा के हुरूफ कितने होते हैं, 3 लेटर्स होते हैं. फर्स्ट रूट लेटर, सेकंड रूट लेटर, थर्ड रूट लेटर होते ही ये नहीं. और कितने फीसद होते हैं ये, 90%. फीसद इज द परसेंट. अब सारे अस्मा, सारे अफ़ाल के रियल एंड प्योर रूट लेटर्स आर ओनली 3 ही होते हैं. फिर इन हुरूफ असली में, अब हुरूफ असली मालूम हुआ, व्हाट आर द हुरूफ असली, असली हुरूफ, द ओरिजिनल रूट लेटर, ओनली 3. तो फिर इन ओरिजिनल 3 रूट लेटर्स में कुछ हर्फ, कुछ एक्स्ट्रा लेटर्स ऐड कर दिए जाएं तो कलिमा एक दरख्त की तरह फूलता फलता है. उतने ज्यादा लेटर्स, जैसे पत्ते फूलते फलते ही फल फूल आते हैं, इस तरीके से वो दरख्त की तरह फलता फूलता है. ओके. Any new word grows like a tree from its root letters. रूट लेटर 3 ही होते हैं. आपने एक्स्ट्रा लेटर ऐड किया, एक लेटर ऐड किया तो इट बिकम ए न्यू लेटर एंड इट विल हैव इट्स ओन मीनिंग. ये 3 रूट लेटर के साथ अगर हम एक्स्ट्रा लेटर ऐड करें तो इट ग्रोस जस्ट लाइक ए ट्री. तो इन हुरूफ ज़ायदा को जब हम ऐड करते हैं तो वो कितने हुरूफ ज़ायदा हैं, ज़ायदा मतलब एक्स्ट्रा. एक्स्ट्रा रूट लेटर्स आर 11. ओनली 11 लेटर्स आर देयर. जो किसी भी तुम लफ्ज को बढ़ाने के लिए ये इस्तेमाल जब हम करें तो उसका मीनिंग एक्स्ट्रा देते हैं और एक न्यू वर्ड बन जाता है. तो वह कौन से हैं 11 रूट लेटर्स, अलिफ, हमजा, ता, गोलता, ता मरबूता, सीन, लाम, मीम, वाव, नून, हा, या. उन सारों को मिलाकर द ग्रेट ग्रामरियंस ने एक नाम दिया है, सअलतुमूनीहा. सअलतुमूनीहा. सअलतुमूनीहा का भी मीनिंग है, ये एक तो एक लफ्ज बन गया. इसका मीनिंग है तुम सब मुझसे पूछो इसके बारे में. लेटर्स ऑफ एंडिंग, एक्सटेंडिंग द रूट from root letters. So this is the root of the tree. Okay, root of the tree को अगर हम सअलतुमूनीहा, अलिफ, हमजा, गोलता,
ओपन था, सीन नून मीम वाव हा लाम वाव या जमा करेंगे तो एक दरख्त की जैसा फूलेगा फलेगा। तो आज आपने इतना सीखा कि सअलतुमूनी हा और 3 रूट रेडिकल्स आपने ये पढ़ा। The first root letter, the second root letter, the third root letter. अब ये एक एग्जांपल देकर मैं यहाँ खत्म कर रही हूँ। कतबा, काफ तब, काफ तब। Kaf is the first root letter, ta is the second root letter, and ta is the third root letter. हर्फ ज़्यादा अगर हम जो एक्स्ट्रा लेटर्स हैं अगर हम ऐड करें, इस्तेमाल करने के लिए इनको लगाएं तो क्या बन जाते हैं? वो लफ्ज कुछ से कुछ बन जाते हैं। तो एक्स्ट्रा लेटर्स कौन से ही? अलिफ ता, ये अलिफ और हमजा, हमजा भी आता है। हमजा अलिफ ता, ओपन था, राउंड था, गोल था, सीन लाम मीम वाव नून हा एंड या। कतबा को हमने काफ ताबा 3 रूट लेटर को अगर हमने हमजा लगाया, अलिफ लगाया तो क्या बन जाता है? राइट, उक्तुब, उक्तुब, राइट, फेले अम्र बन गए। उक्तुब, राइट। कतबा का मीनिंग क्या है? ही रोट, ही रोट से कमांडिंग वर्ड बन गया राइट। उक्तुब क्या आपने लगाया? हमजा लगाया। मीम ऐड किया आपने कतबा को, मीम जो है यहाँ सल तो मुनी में मीम ऐड किया तो मकतबुन, लाइब्रेरी, ये बन गया। एक लेटर ऐड करेंगे तो लेटर की शक्ल बदल जाएगी, मीनिंग में एक्स्ट्रा मीनिंग आ जाएगा। अब मीम काफ ता के साथ वाव मैंने ऐड किया तो क्या बन जाएगा? मकतूबुन, मकतूबुन इज द रिटर्न, रिटर्न, रिटर्न लेटर, रिटर्न आर्टिकल, रिटर्न। ऐसे ही मीम काफ, मीम के साथ वाव निकाल कर ता मैंने लगाया तो क्या बन जाएगा? मकतबतुन, मीम आया, काफ ताबा रिमेन्स द सेम, ताय मरबूता, डेस्क और टेबल। ऐसे ही या लगाया तो क्या बन जाएगा? यक्तुब। ऐसे ही एक्स्ट्रा लेटर्स आप ऐड करते रहेंगे तो क्या से क्या बन जाएगा? काफ ताबा, वाव लगाया आपने, वाव अलीफ तो कतबू, या नक्तुबू, नून लगाया आप पहले तो नक्तुबू। अगर अलीफ लगाया, कतबा को अलीफ लगाया, काफ फर्स्ट रेडिकल, सेकंड रेडिकल के बाद इफ यू ऐड अलीफ तो कातिब, किताब, किताब, कातिब, किताब। ता सेकंड रेडिकल के बाद अलीफ लगाया, यहाँ फर्स्ट रेडिकल के बाद अलीफ लगाया, का द फर्स्ट रेडिकल के बाद अलीफ, यहाँ सेकंड रेडिकल के बाद अलीफ। सी हियर, कातिब, हम इतना बोलते हैं कातिब कौन है? इस किताब का कातिब कौन है? इन्हें के लिखने वाला कौन है? हु इज द राइटर ऑफ दिस बुक? किताब इज द बुक। कितना कुछ आता है देखिए आप। तो सिर्फ कतबा से कितने सारे लेटर्स बन गए। एक्स्ट्रा लेटर्स आपने ऐड किया तो एक्स्ट्रा लेटर्स बन गए। मकतब, मकतूब, मकतबतुन, यक्तुब, नक्तुब, कतबू, उक्तुब, कातिब और किताब। इसको इसमें डालें, आप एक ट्री में डालें, इसके रूट है काफ ताबा। सी हियर, काफ ताबा रूट है ये। तो रूट से कितने सारी चीजें, कितने सारे वर्ड्स यू आर गेटिंग इफ यू ऐड एक्स्ट्रा letters to this root letters. See, maktubun, maktabun, kitabun, katibun, uktub. ये कुतुबु यानी कि कतबु, नक्तुब, यक्तुब, मक्तबतुन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही मैं आपको एक रूट लेटर दे रही हूँ। मैंने टाइम नहीं देखा, कितना टाइम हो गया है? ओह, 1:12 हो गए ही, तो यहाँ पे मैं स्टॉप करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो दिस इज द, ये है आपके लिए होमवर्क है ये। तो यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पे है जस्ट लाइक कतबा, मकतूबुन, कातिबुन, किताबुन, कुतुबु, नक्तुबु, यक्तुबु जो दिया था, ऐसे ही इस्लामुन, मुस्लिमातुन, तस्लीमुन, मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमैन, मुस्लिमतुन, मुस्लिम। ओके,
اب آپ سبوں نے کل پرسوں کے لیسنس میں پڑھے ہیں سنگولر مؤنث ڈویل پلورل مذکر اینڈ مؤنث وغیرہ وغیرہ. تو اب یہاں دیکھیے مسلمون یہ کیا ہے؟ یہ سنگولر ہے یا ڈویل ہے یا پلورل ہے؟ سنگولر. singular. تو مسلمون تم نے ایکسٹرا کیا ایڈ کیا ہے یہاں پہ؟ جو بلیک لیٹر میں ہی وہ ایکسٹرا لیٹرز ہیں. میم. میم. اوکے اب یہاں ہے مسلمتن. جلدی جلدی بتاتے بولتے چلے. مسلمتن Singular. سنگولر ہے، میم اور تائے مربوطہ ایڈ Meme کی. اور تا extra letter. اب میں نے کتبہ کو کیا میم ایڈ نہیں. کیا تھا؟ کتبہ کو میم اور تائے مربوطہ ایڈ کرنے میں مکتبتن. بنا تھا. ایسے ہی مسلمتن مکتبتن. مسلمتن. اب یہاں میں نے کیا ایڈ کیا؟ یانون. مسلمینی میم اور یانون. عینی. تو کیا بنا؟ یعنی مسلمین. میننگ کیا ہے؟ مسلمینی دو عینی دو مسلمان. دو مسلمان men. دو مسلمان. مسلمانی دو مسلمان. دو مسلمان رفون حالت میں. آنی اور میم ایڈ کیا. دو یہاں مسلمان. میم اور عینی ایڈ کیا. یانون. مسلمون Meme اور واو. Plural. مسلمون. یہ کیا واو. بنا؟ اور واو. سنگولر اور دو- ڈویل. جمع. جمع. Plural. جمع. جمع. Plural. جمع. تسلیم تا اور یا ایڈ کی. مسلمات میم اور الف. پلورل. آتن. پلورل. Alif and ta. فیمینن پلورل. الف تائٹ کا تو کیا بنتا ہے؟ یہ پلورل. فیمینن. Plural. آتن. Dual. Plural. یہ اسلامن حمزہ ایڈ کیا. اسلامن. الف ایڈ کیا حمزہ. اور لام کے ساتھ بھی حمزہ. الف ایڈ کیا. حمزہ اینڈ الف ایڈ کیا ہم نے. اسلامن. تو یہ سارے کا روٹ لیٹر کیا ہوا ہے؟ اب مجھے بتائیں کہ ساروں کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ سین لام میم. Sin Lam mim. لام میم. تو ایکسٹرا لیٹرز کہاں کہاں پہ ایڈ ہوتے ہیں؟ ایٹ دا اسٹارٹنگ آف دا ورڈ، اینڈنگ آف the middle of the word, Ending. after Next first word. radical, after first radical, after second radical, at the ending of the verb, at the starting of the verb. Okay, دیکھ رہی ہیں آپ سب یہ؟ تو سبوں کا ناؤن ہو یا ورب ہو روٹ لیٹر تو ہوتا ہے. کہ ایکسٹرا لیٹرز ایڈ کرتے ہیں. سلمہ سین لام میم از دا روٹ لیٹر. اس 3 روٹ لیٹر سے کتنے سارے الفاظ بنے؟ تو سو از اٹ ناٹ فیسینیٹنگ؟ از اٹ ناٹ بیوٹیفل؟ سو دس عربک لینگویج از ویری ویری بیوٹیفل, ویری ویری فیسینیٹنگ. اگر آپ اس کو ہاں میں نہیں جواب دے رہی ہوں, سب گونگے بہرے بنے بیٹھے ہیں, تو اٹ از اپ ٹو یو کہ یو آر ناٹ ایٹ آل انجوائنگ آل دیز تھنگس. جو ایسے نہیں لیتا تو اس کو کیا آئے گا. خیر چلیے, آپ لوگوں کے لیے میں نے 3 درخت ڈالے. یہ آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک ہے. یہاں میں نے ڈالا اکبر تکبیر کبرا کبیر. سہیر اس کا روٹ کیا ہے؟ ان 4 الفاظوں کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ یو ہیو ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن. یہاں میں نے ڈالا اس خالی ٹری میں ساجدن, اوکے, یسجدو مسجدن سجدو. تو اس کا واٹ از دا روٹ لیٹر؟ ہیئر آئی ہیو پٹ قبلتن قبول مقبول استقبال. اس کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ تو سو دس از دا ہوم ورک فار یو. اوکے